Good morning. Praise the Lord. Hallelujah. Jai Masiki. It is wonderful moment to come in the presence of God Almighty and give thanks in the presence of God for this particular time, for everything, whatever God is doing. God has already done in the past, and God is doing for our futures. So let us give praise to God Almighty and give thanks for everything. It is wonderful thing. It is glorious things when we give thanks and honor God. Hallelujah. Uh, Today we are gonna focus and meditate on fasting. So we'll talk about fasting. What Bible say about fasting or upwas or rosa or vrat. So we'll talk about fasting today. So before starting sharing anything, let's humble ourselves in the presence of God and pray to God. Amen. Hallelujah. Father God, O Father, Son, and the Holy Spirit, we give you praise and glorify your name. We are thankful. We love you. We honor you, God. Particularly, specifically, I pray for this word, Lord. Bless this word. Hallelujah. Thank you, Jesus. I proclaim your covenants, your promises, and your faithfulness on each one of us. Help us to never forget the theme of the Bible, which help us to maintain our relationships with God Almighty. Hallelujah. Thank you, Lord. O compassionate, all knowing, and loving Father in heaven, we give you praise, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. Father God, whatever I'm going to share, stand by my side, give me more wisdom and understanding to speak and to talk and to proclaim your word with the heavenly wisdom. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Father God, I have strong faith and I believe, I trust on you that whatever I'm going to share, it is going to be fruitful in our life. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we ask. Amen. 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 So, fasting, when we uh, focus on this particular tradition or particular
we can say requirement requirement of Christian life. Fasting is not a command. When we read the full scripture, full complete Bible, uh, there is nowhere mention in the Bible that it is a commandment, but it is a requirement. Not commandment, but requirement. It's a need. uh, ये ज़रूरत हो सकती है, ये एक कह सकते हैं कि जब हमें लगता है कि हमें और ज़्यादा आत्मिक रूप से बढ़ने की या उभरने की ज़रूरत है, या कई परिस्थितियों में से हमें ओवरकम करना है, या वो व्यक्तिगत रूप में हो सकता है, पारिवारिक ज़िंदगी में हो सकता है, या कलीसियाई तौर पर हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर प्रांत या किसी नेशन के लिए हो सकता है। So fasting is not a command. It is often coupled with prayer in order to manifest one's or people of God's dependency on God's help. There are many examples in the Old Testament and in the New Testament we can see, and these examples are the inspirations. ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक उदाहरण है, जो हम व्यक्तिगत जिंदगियों में देखते हैं कि कैसे कैसे बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के लोगों ने जो उपवास किए या वो प्रार्थना में अपने समय को बिताया, और उपवास हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में आत्मिक रूप से बढ़ने में हमें मदद करता है। आत्मिक उन्नति के लिए जो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है, जो घनिष्ठ संबंध है, उसमें बरकरार रहने के लिए हमारी सहायता करता है, हमें मदद करता है। आमीन। जब हम पुराने नियम में मोसेस की लाइफ को देखते हैं तो वो 40 दिन और 40 रात सिने पर्वत पर रहा। वो उसकी फास्टिंग थी, उसने वहां कुछ खाया पिया नहीं। लेकिन वो बात जो प्रभु यीशु मसीह ने कही कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। वो 40 दिन 40 रात वहां परमेश्वर की उपस्थिति में, हुजूरी में था, और वहां पर जो उसने समय बिताया वो उसकी जिंदगी का एक अद्भुत, एक अलौकिक शक्ति के अंदर एक अद्भुत एक्सपीरियंस था। आमीन। और वो जब वहां से वापस आया तो परमेश्वर की हिदायतों को, उन कमांडमेंट्स को जो इजराइलियों के लिए परमेश्वर ने दी, वो लेके आया। आमीन। और वो उसका उपवास या उसका जो समय परमेश्वर के साथ बिताना वो जाया नहीं गया, लेकिन उसकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट को और परमेश्वर के लोगों के लिए स्वर्ग से हिदायतों को या कमांडमेंट्स को लेके आया। आमीन। और जब हम न्यायों की किताब को पढ़ते हैं, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 20 वर्स 26, वहां लिखा है कि देन ऑल द पीपल ऑफ इजराइल, द होल आर्मी वेंट अप एंड came to Bethel and wept. They sat there before the Lord and fasted that day until evening.
They offered burnt offering and peace offering. There are many things we can read in the Bible before the Lord. They prayed and they cried. वो वहां पर उन्होंने उपवास किया और परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में हाजिर हुए। और और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं बाइबल में। जब हम भजन संहिता उसका 35 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां मेंशन है कि दाऊद ने, किंग डेविड जो इज़राइल का राजा था, उसने उपवास किया। और द बुक ऑफ इजाया को जब पढ़ते हैं उसका 58 अध्याय, उसमें हम देखते हैं कि वो ट्रू और फॉल्स फास्टिंग के बारे में जो संक्षेप में वर्णन किया गया है। और डैनियल नबी की किताब जब आप पढ़ोगे तो वहां डैनियल नबी ने भी फास्टिंग में के साथ प्रार्थना करी। और नेहमाया की किताब जब आप पढ़ते हो तो नेहमाया ने उस समय किसी ने उसको कहा नहीं कि तू फास्ट कर और प्रार्थना कर, लेकिन उसके हृदय में परमेश्वर ने जब ये बात डाली और उसको लगा कि ये नीड ऑफ एन आवर है या रिक्वायरमेंट है इस समय, और वो अपने और अपने लोगों के बिहाफ पर परमेश्वर के सामने रोया, गिड़गिड़ाया। वो थी रिपेंटेंस की, उपवास की प्रार्थना, है ना। वो आ, उसने जो प्रार्थना करी और वह उसके बाद एक नया यरूशलेम बना, जो उसकी जो शहरपना टूटी हुई थी वो नई हो गई। तो ये तो उसका उपवास। और हम अलग अलग जर्नीज को देखते हैं, बाइबल के लोगों को देखते हैं। इजराइलियों ने पुराने नियम में जब अब पढ़ते हैं तो अलग अलग समयों पर जब जब जरूरत की घड़ी आई तो लोगों ने उपवास रखे और प्रार्थनाएं करी और परमेश्वर के सम्मुख आए और परमेश्वर के साथ रिश्ते को बरकरार रखते हुए उसके साथ आगे बढ़ते गए और परमेश्वर में बने रहे। ये सबसे बड़ी बात है। ये उपवास की प्रार्थना हमें परमेश्वर में बने रहना भी सिखाती है, उसमें बरकरार रहना भी सिखाती है। और उपवास की जो प्रार्थना है ये बहुत प्रभावशाली होती है। और उसमें क्या है कि व्यक्ति जब उपवास के समय से गुजरता है तो उसका जो ध्यान है या उसका मनन है, एक वो मेडिटेट करता है परमेश्वर के वचनों के ऊपर, परमेश्वर की हजूरी में रहने की कोशिश करता है और परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए उसके वचनों पर मनन करते हुए, प्रार्थना में समय बिताते हुए और कुछ एक विषय या प्रार्थना के पॉइंट्स होते हैं वो परमेश्वर के सम्मुख रखता है। वो व्यक्तिगत हो सकते हैं या पारिवारिक या नेशंस के लिए। वो जरूरी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए उनको मद्देनजर रखते हुए उनको परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। तो ये उपवास जो है और इसका जो जो कनेक्शन है, अ, ये एक अलौकिक और अद्भुत है। ये हमें एक डिवाइन इंटरवेंशन को हमारी जिंदगी में आने के लिए क्या करता है, उस प्रक्रिया में हमारी मदद करता है। हम जब घोषणा करते हैं किसी अलौकिक या डिवाइन या जो परमेश्वर का, जो इज़राइल का परमेश्वर है, जो बाइबल का परमेश्वर है, बाइबल के परमेश्वर के सम्मुख जब हम अपने आप को रखते हैं या अपने प्रार्थनाओं को रखते हैं, एक होती है सिंपल, हम सिंपली जब प्रार्थना करते हैं वो उसको बोलते हैं प्रेयर करते हैं। जो प्रेयर करते हैं मीन्स परमेश्वर के साथ हम बातचीत करते हैं। लेकिन जब उपवास के साथ जब हम प्रार्थना में आते हैं तो वो एक सफरिंग के साथ हो जाती है। वो हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को एक सफरिंग के साथ रखने की कोशिश करते हैं, एक रिक्वायरमेंट को देखते हुए, एक उस जरूरत को देखते हुए जो कि जरूरी है कि उसको ओवरकम किया जाए। तो ओवरकम करने के लिए या उसमें से कह सकते हैं कि
एक एक जैवन से बढ़कर जिंदगी में उभरने के लिए या एक नएपन को देखने के लिए, न्यूनेस को देखने के लिए, हम उस जिंदगी में बढ़ने के लिए इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस में से एक व्यक्ति निकलता है। वो उपवास की एक प्रक्रिया है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी की उनकी जो शुरुआत के समय को देखे, जब उन्होंने सेवकाई को शुरू किया तो उन्होंने 40 दिन और 40 रात वो निराहार रहे और उपवास में रहे और प्रार्थना में समय बिताया, परमेश्वर की हजूरी में समय बिताया। और उपवास के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी टीचिंग से के दौरान, अपनी सेवकाई के दौरान, अपनी शिक्षाओं में भी दी उपवास के लिए, जब हम रेफरेंस के रूप में मत्ती रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, न्यू टेस्टामेंट में से उसका 6 अध्याय, उसकी 16वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि जब तुम उपवास करो, व्हेन यू फास्ट, सो जब तुम उपवास करो। और आप उपवास कभी भी कर सकते हैं। मैंने कई बार दिसंबर में फास्टिंग करी है, अपने आप को रखा फास्टिंग में, उपवास में। और इन दिनों बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारी कलीसियाएं जो परमेश्वर के वचन को जो डॉक्ट्रिन्स के अनुसार, जो पवित्र आत्मा ने हमारे पूर्वजों को सिखाया और उनके अनुसार जो नियुक्त किए गए, और उन 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 शिक्षाओं के द्वारा कुछ लोग उपवास के दौर में से निकल रहे हैं या निकलते हैं। इस प्रार्थना और उपवास के समय में अपने आप को रखने की या उस समय को व्यतीत करने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर उन सबको आशीष करे, ब्लेस करे। लेकिन जब उपवास में जब हम होते हैं तो हम बहुत सारी परमेश्वर की जो चमत्कारों को भी, अद्भुत कार्यों को भी देखते हैं, या अपने कार्यों को पूर्ण होता हुआ देखते हैं। या उपवास के साथ जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो परमेश्वर की कवरिंग को, उसके प्यार को, उसकी सहभागिता को, उसकी विश्वास योग्यता को हम अपनी जिंदगियों में देखते हैं। और जो जिस रिक्वायरमेंट के लिए या जिस पर्टिकुलर जो है नीड या परिस्थिति के लिए हम उपवास के उस समय से निकलते हैं या रखते हैं, तो परमेश्वर पहले से ही जानते हैं। गॉड इज ऑल नोइंग गॉड। और परमेश्वर जब जानते हैं, लेकिन फिर भी जब परमेश्वर के लोग उपवास के साथ प्रार्थनाओं में रहते हुए और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते हुए इस जीवन को व्यतीत करते हैं, तो वो उनकी जिंदगियों के लिए, उनके फ्रूटफुल होने के लिए, फलदायक होने के लिए और बढ़ोतरी के लिए और उनकी जिंदगियों में खुशहाली के लिए और परमेश्वर में बने रहने के लिए सहायक सिद्ध होता है। तो ये एक प्रक्रिया है कि हम परमेश्वर के साथ जब हम रिश्ते में हैं, उस रिश्ते में बरकरार रहने के ये कुछ एक प्रक्रिया है। एक मसीह जिंदगी की या क्रिश्चियन लाइफ की जब हम देखते हैं, और जब हम अर्ली चर्च को भी, जब जब न्यू टेस्टामेंट के जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों के द्वारा, जो के डिसाइपल्स या उसके बाद अपोस्टल भी कहलाए या टीचर्स कहलाए या प्रीस्ट या पास्टर कह लो, उन्होंने जब जो अर्ली क्रिश्चियंस थे या अर्ली चर्च जो स्थापित हुए, प्रेरितों के काम नाम की किताब, उसका 13 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, द बुक ऑफ एक्ट्स, 5th बुक ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, उसमें उन्होंने भी फास्टिंग किया। तो परमेश्वर, बाइबल हमें सिखाती है उपवास के लिए कि जब जब चर्च को या कलीसिया को या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या किसी पर्टिकुलर नेशन को, या जैसे इज़राइल का ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल पुराने नियम में बार बार हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के लोगों ने उपवास किए और उपवास में रहे, और उसमें रहते हुए परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अपनी जिंदगियों में देखा। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो और प्यार करने वाले पिता हैं, और वो अपने बच्चों को, अपने अनुयायियों को कभी नहीं छोड़ते। उनका वायदा है कि मैं जमाने के तमाम होने तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूं।
उनका वायदा है कि जहाँ कहीं तुम जाओगे, मेरी हजूरी, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ रहेगी। और उनके वायदों को कभी ना भूलें, और परमेश्वर की हजूरी में रहते हुए जब भी हमें लगता है कि अब हमें ज़रूरत है कि उपवास में आने की, या उपवास में रह के प्रार्थना करने की, या वचन पर मनन करने की, तो उपवास में ज़रूर रहें और जाएं। लेकिन ये कमांडमेंट नहीं है, ये इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी थिंग, लेकिन ये है कि एक रिक्वायरमेंट है। मसीह ज़िंदगी की एक ज़रूरत है, और उस ज़रूरत, उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए, और ये ऐसी ज़रूरत है कि जो कि बहुत बड़े-बड़े रिवाइवल्स का कारण हो सकती है। बहुत बड़े-बड़े जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल रिवाइवल्स का हिस्सा हो सकती है, जो उपवास की प्रार्थना। और इसके द्वारा हम कई डोर ओपनिंग्स को, कई देख सकते, कई बंधनों को देख सकते, परमेश्वर की भरपूर उपस्थिति या हजूरी को अपनी जिंदगियों में देख सकते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको मसीह जिंदगी में हम लोग अपनी व्यक्तिगत जिंदगियों में, या पारिवारिक जिंदगियों में, या कलीसियाई तौर पर हम इनको करते हैं। और ये बहुत ही अ, अ, एक उत्तम एक प्रक्रिया है, जिसमें एक मसीही जिंदगी में हम अपने आप को परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुकूल रखते हुए उसमें बढ़ते हैं। आमीन। तो आजकल जो फास्टिंग या उपवास के ट्रेंड्स कुछ चेंज भी हुए। कुछ चर्चेस या कुछ कलीसियाओं में हम देखते हैं कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, या वन मील टू मील फास्टिंग्स। जब हम पुराने अहदनामे को या पुराने नियम में स्टडी करते हैं, तो कंप्लीट फास्टिंग होती थी, या फुल फास्टिंग, या कंप्लीट 40 डेज और या 21 डेज, या ऐसे फास्टिंग लोग, परमेश्वर के लोग करते आए हैं। लेकिन आजकल, क्योंकि जब हम जो जो शारीरिक तौर पर कई बार कई व्यक्ति या परमेश्वर के लोग, जैसे मेडिकल फील्ड में हम देखते हैं कि डायबिटीज से ग्रस्त होते हैं। तो उस परिस्थिति में कुछ लोग, लेकिन उन्होंने जो परमेश्वर के साथ उनकी वाचा है, या परमेश्वर के साथ उनका जो रिश्ता है, उसको बरकरार रखने के लिए क्योंकि वो ज्यादा समय तक निराहार नहीं रह सकते, ज्यादा समय तक फास्टिंग में नहीं रह सकते, तो इसलिए वो 1 मील या 2 मील, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो वो 1 मील या 2 मील फास्टिंग में रहते हुए उस प्रोसेस में बरकरार रहते हैं कि परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, उनका रिश्ता जो है वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है, बहुत अनिवार्य है कि इसकी डेप्थ को अंडरस्टैंड करना, इसको अंडरस्टैंड करना कि ये फास्टिंग जो है, ये एक रिक्वायरमेंट है मसीही जिंदगी में, परमेश्वर के साथ बरकरार रहने के लिए, परमेश्वर के साथ रिश्ते में बरकरार रहने के लिए, और परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को रखने के लिए। कई बार कुछ स्पेसिफिक प्रार्थनाएं होती हैं, या कुछ खास विषयों के लिए प्रार्थनाएं होती हैं। जब हम उनको उपवास के जरिए या उपवास के द्वारा रखते हैं, तो उनका हमें आंसर जो है परमेश्वर की हजूरी में, हम उसको देखते हैं, या उसके उत्तर को देखते हैं, या एक बदलाव को, या एक रिवाइवल को, या एक नए चेंज को, या एक नएपन को हम इसके द्वारा देख सकते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि जब हम उपवास में से निकलते हैं, तो इसकी गहराई को अंडरस्टैंड करें कि ये परमेश्वर के साथ बने रहें। मैं हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं, और उसको परमेश्वर के लोगों से विनती करता हूं, और इनकरेज करना चाहता हूं कि जब कभी भी आपको लगता है कि अभी ज़रूरत है, और जब कभी भी आपके कलीसियाओं में, आपके जो लीडरशिप में लोग हैं, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए लोग, या परमेश्वर के लोग जो कि आपको लीड करते हैं,
चाहे पास्टरल मिनिस्ट्री है या प्रीस्ट है या चर्च के जो आप लीडरशिप में, वो निर्धारित करते हैं कि इन समयों में या इन दिनों में हम कलीसियाई तौर पर या पारिवारिक तौर पर हम लोग उपवास में जाएंगे या उपवास में रहेंगे। उनकी जो हिदायतें हैं या उनकी जो हम देखते हैं कि वो रिक्वायरमेंट को देखते हुए एक गुजारिश के रूप में उसको रखते हैं। तो उन दिनों में से जब आपको कहा जाता है तो आप ज़रूर उसमें से, उपवास में से निकलें, और अगर आप उसमें से कर सकते हैं तो उसमें ज़रूर बरकरार रहें। तो ये मदद करता है हमारी कि हम परमेश्वर में बने रहें, और परमेश्वर में बना रहना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, जो वचन के द्वारा हमने बात करी, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ये वचन प्रभावशाली हो, जो हम जब हम उपवास या फास्टिंग में से पिता परमेश्वर निकलते हैं, उस प्रक्रिया को, उस आवश्यकता को देखते हुए और प्रभु आप में बरकरार रहते हुए, ना सिर्फ व्यक्तिगत जिंदगियों के लिए लेकिन पारिवारिक जीवनों के लिए, कलीसियाई तौर पर या अलग अलग लोगों के लिए या अलग अलग परिवारों के लिए, जब हम प्रार्थनाओं में से निकलते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास भरी जिंदगी में से निकलते हैं, और जो लोग भी इन दिनों उपवास में या प्रार्थनाओं में अपने समय को बिता रहे हैं, प्रभु उन सब की जिंदगियों में खुशहाली और प्रफुल्लित होने की प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। उनके ऊपर कंप्लीट चंगाई को बोलता हूं पिता परमेश्वर, और प्रभु उनकी जिंदगियों में खुशहाली हो। जो प्रार्थना योद्धा प्रार्थनाओं में लगे हुए, प्रार्थना उनकी कबूल हो आपके राज्य में प्रभु। और पिता परमेश्वर, जो भी लोग उपवास में अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी विनतियों को रखते हैं, उनको आप पिता परमेश्वर आप सुनना और उनका उत्तर देना प्रभु। आपकी मदद, आपकी सहायता के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति प्रभु आप में बढ़ता जाए, आप में उन्नति तरक्की करता जाए। आप प्रभु वो ना सिर्फ प्रभु एक एरिया में, लेकिन पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि होलिस्टिकली प्रत्येक एरिया में प्रभु वो एक ओवरकमर के रूप में आप में जिंदगी को व्यतीत करता हुआ आगे बढ़ता जाए प्रभु। हमें विश्वास है कि आप विश्वास योग्य पिता हैं। जब आप साथ हैं तो सब कुछ है पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं प्रभु। हमें विश्वास है पिता परमेश्वर कि हर परिस्थिति में आप साथ हैं। आपका, आपके वायदों को, आपकी प्रॉमिसेस को हम घोषित करते हैं, और ये प्रार्थना मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करे।